हेलो ऑल, मैं हूं पारस कुठारी और आज मेरे साथ इंडिया टीवी पर दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और इनकी जो जोड़ी है वो माशाल्लाह इतने सालों से ऑडियंसेस को एंटरटेन कर रही है और वो हैं असद एंड जोया, करण सिंह ग्रोवर एंड सुरभि ज्योति। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ये बताइए कि कबूल है का ये जो नया सीजन है, एक नए तरीके से, एक नई फ्रेश कहानी, लेकिन वही पुरानी जोड़ी, वही पुराना रोमांस अब वापस ऑडियंसेस के सामने लेकर आ रहे हैं एक नए अंदाज में, नए तरीके से, वो भी टेलीविजन पे नहीं, इस बार ओटीटी पे होगा। कितने नर्वस हैं आप दोनों? करण, आपसे शुरू करते हैं। और नर्वस बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि इस बार हम लोग असद और जोया को एक नए यूनिवर्स में देखेंगे। इवन दो आवर कैरेक्टर्स आर द सेम, बाकी सब कुछ काफी बदल गया है। एटलीस्ट माय फैमिली एंड माय बैक स्टोरी इज द सेम. Zoya's family and backstory is changed a little completely actually, but they're in a different universe and it's a 2021 version of Kabul Hai and not the 2013 version. So it's going to be power packed action, romance, everything together, and Asad and Zoya. सुरभि, 7 साल के बाद, इनफैक्ट 7 साल से ज्यादा समय के बाद आप लोग वापसी कर रहे हैं और इस बार पवई में शूट नहीं कर रहे हैं। कितना मिस कर रहे हैं पवई के चित्रा स्टूडियो को? बिल्कुल भी नहीं। I'm sorry. I mean, we shot in Belgrade. Yeah, who would miss Powai when you are there? It was much better there. Yeah. So, कैसा एक्सपीरियंस रहा एक बार फिर से जोया प्ले करने का, असद के साथ रोमांस करने का, असद जोया की जोड़ी के रोमांस को रिक्रिएट करने का? How was experience? It was amazing. क्योंकि Zoya is one character which is closest to my heart because I think that's the first character that I have ever played, and I have lived her journey. You know, I've lived as Zoya. So it was an amazing feeling. Like, you know, people on the set, they were again calling me Zoya. There was Asad in front of me, and there were again, you know, some of those dialogues that Allah Mia, what's wrong with you, and also it's like, you know, we have time traveled to create a history again. I really can't describe it in words. That it was a very, very amazing feeling. करण, कितनी बदल गई है सुरभि 7 सालों में? कुछ चेंजेस आए क्या सुरभि के अंदर? क्योंकि इन 7 सालों में बहुत कुछ किया है सुरभि ने टेलीविजन पे। अलग अलग टाइप के किरदार, नागिन भी बन चुकी है वो। I know. बहुत ही खूबसूरत नागिन। कितनी बदली है सुरभि पर्सनली? सुरभि, I think पहले से ही she's always been like a rock star only. So that part of her didn't change much. Her core is a very, very the kind of core that human beings should have. But she has evolved. There are a lot of things about her that she has made sure that have are at a higher vibration now. So she's like a better version of herself. And what about KSG, Surbhi? KSG कितना चेंज हुआ है या फिर अभी भी वैसे ही है? वैसे ही है मतलब क्या? He was always good. He is still good. I'm talking about good only. Good only, yeah. Yeah, okay. I'm just gonna tell you good only because that's all I see in him. He's amazing on the set. Very professional. He was always. Let me just tell you the changes. He was. He's again a better version of himself. Yeah, that's true for both of you. You both are like damn professional, very hardcore professional, and very, very committed to your work. I've personally seen it on the sets of Kabul Hai in Powai, in Chitraj Studio. Obviously, जब आप बेलग्रेड में शूट कर रहे थे तो हम तो वहाँ थे नहीं, but फिर भी I'm sure कि वही केमिस्ट्री और वही बॉन्डिंग रही होगी करण और सुरभि की, और वो आज इस इंटरव्यू में भी नजर आ रही है. One more thing, जो असद जोया हमें 7 साल पहले नजर आए थे कबूल है में, जब कबूल है शुरू हुआ था और रातों रात एक सेंसेशन बन गई है जोड़ी, उस जोड़ी की बॉन्डिंग में, उनकी केमिस्ट्री में, उनके रोमांस में कुछ डिफरेंस है या फिर वही आप फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं? What are the differences in the chemistry and bonding? No, we have raised the bar. I think. I'm sorry, Karan. You please. No, go ahead. Yeah, so I'm saying nothing is constant. You know, like you asked, that Karan is changed for good. So is Surbhi. Then how can Asad and Zoya be the same? You know, they are also again better versions of themselves, and the romance is better, and everything is again 2021 version. So of course it has to be better.
लेकिन करण, इस बार आप टेलीविजन ऑडियंसेस को केटर नहीं कर रहे हैं, इस बार आप ओटीटी ऑडियंसेस को केटर कर रहे हैं। मीडियम बिल्कुल बदल गया, और स्पेशली आफ्टर द कोविड टाइम ये बहुत बड़ा चेंज आया है इंडिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, कि टेलीविजन और मूवीज से हटकर, सिनेमा हॉल से हटकर, टेलीविजन सेट से हटकर अब लोग ओटीटी की तरफ बढ़ गए हैं। उन लोगों ने घर में एक एंटरटेनमेंट का एक अलग मीडियम ढूंढ लिया और उसको बहुत पसंद भी कर रहे हैं। सो आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? ओटीटी इज द न्यू, लाइक इट विल बी इन वोक फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। See, the whole world moving to the digital space was an inevitability. तो वो तो होना ही था, but वो I think ये वायरस की वजह से थोड़ा बूस्ट हो गया उसका स्पीड। एंड हम जब भी परफॉर्म करते हैं या जब भी कुछ पोर्ट्रे करते हैं, तो हम ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे होगी या देख रही होगी वो हमारे जहन में नहीं रहता है। ये एक बहुत बड़ा वेव है चेंज का, जिसमें the audience is also in the same wave, and obviously we are blessed and honored to entertain them. So as their entertainers, we also have to be in the same wave. Wherever they go, we are there, and nothing that we do from our end changes, but हमारे पास एक बहुत humongous superpower है इस बार, क्योंकि बहुत मतलब ये अगर if you go through this situation, only you can have this. Asad and Zoya will be fresh and they will meet for the first time, but because the audience has seen us and because we've put in that much work before, our base core of romance and the chemistry is like it's unbeatable right now. So it's like no, you can't have that unless you have that before. भी टेलीविजन को कितना मिस करेंगी आप, क्योंकि अब आप भी टेलीविजन से हटकर ओटीटी की तरफ बढ़ चली हैं। इतने सारे शोज, इतना सारा काम, इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स करने के बाद, यू आर अगेन प्लेइंग जोया बट ऑन ओटीटी, नॉट ऑन टीवी। आर यू मिसिंग टीवी? No, see, I am performing for the audience and they are gonna see me again. Like Karan said, it doesn't matter if they're watching me on a television screen or on a laptop. I am playing Zoya and it doesn't matter कि वो मुझे phone पे देख रहे हैं, laptop पे देख रहे हैं या TV पे देख रहे हैं. I am gonna put my heart and soul into any role which I'm gonna perform and play. तो ये बिल्कुल भी matter नहीं करता है कि आप TV से दूर नहीं. All I want to do is act. And I'm acting and I'm playing my favorite role once again, and that's the thrill right now. Yeah, nostalgic feel हो रहा होगा आप दोनों को वापस ऐसा जोया प्ले करके। Yeah, yes, and we've tried and recreate that scene where we met for the first time, and that was like, oh my god, as if we are still in the film city. क्योंकि हमने that वो was something else. 8 साल के बाद। हाँ, yes, exactly, वो dialogues भी याद थे. And people around us, they were like, ये क्या है? They were looking at the script and us, and they were like, what is this? Yes, yeah, and I'm surprised कि करण को भी याद थे. मतलब मुझे तो होते ही हैं. अच्छा करण, लॉकडाउन में पिछले एक साल में लगभग 24 मार्च के बाद जब लॉकडाउन लगा, उसके बाद से हमने आपको बेसिकली इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा देखा. वी वर फॉलोइंग यू लाइक कॉन्स्टेंटली, और आपके एक्सरसाइज के वीडियोस, आपके घर की जो छत है, जो बालकनी है, वहां पे आप लिटरली वर्कआउट कर रहे थे. आपने घर को ही जिम बना दिया था. तो अभी घर से बाहर निकल रहे हैं आप या फिर अभी भी घर में ही हैं? What's your status? Are you coming out? मैं 2-3 साल से लॉकडाउन में हूँ. सेल्फ प्रोक्लेम्ड लॉकडाउन इन द सेंस मैं ज्यादा बाहर जाता नहीं हूँ. अपनी बिल्डिंग के बाहर ही नहीं जाता हूँ, क्योंकि मेरा जिम भी यहाँ पर है, और मैं जब एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं पेंट कर रहा होता हूँ, वो भी टेरेस पे ही होता है. तो आई डोंट रियली एवर स्टेप आउट ऑफ द बिल्डिंग टू मच. तो ये लॉकडाउन ओपन होने के बाद, यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो शायद मेरी लाइफ को सबसे कम इफेक्ट किया है. Same here, मुझे भी नहीं. Like मुझे honestly, when I'm not acting, when I'm not going on the set, I prefer to be at home. So for me, nothing was changed actually. Actually, घर से निकलने की आदत नहीं है ज्यादा दोनों को. Both of you are not party animals at all. आप क्लब्स नहीं करते हैं, आप पार्टीज नहीं करते हैं रात में, और आप घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बेसिकली. या मुझे रात को सिर्फ सोना अच्छा लगता है. अच्छा, लास्टली करण एंड सुरभि, आपके सभी फैंस जो लिटरली बहुत बहुत सालों से वेट कर रहे थे कि कुबूले सीजन 2 आना चाहिए, और एक्चुअली आयरॉनिकली
जी टीवी के 2 शोज हैं जो अब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो भी सीजन 2 के साथ। पहले जमाई राजा, रवि और निया का शो, वो आया। उसके 2 सीजन, दूसरा सीजन अब लॉन्च हो रहा है, और अब कबूल है भी वापस आ रहा है आप दोनों के साथ। सो आप अपने उन सभी फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे ऐसा जोया के कमबैक का? You go first. I'm waiting for you to start. मैं कहना चाहती हूँ that we are on the same page because you are also excited, we are also excited, and we've really tried hard to make it look better. But we haven't changed the core of the characters. That's the beauty. And I would say please do watch it. It's releasing tomorrow. I am pretty damn sure that you will love it. Karan, what's your message to the fans? I firstly want to thank everyone because I think the trailers crossed like 3 million something views. Yes. So it's huge hit. That's a lot of love. That's Yes. a lot of love coming to us, and we're very grateful for that. And because of that, हम जानते हैं कि आप लोग कितना excited हैं, और हम भी अभी तक उतने ही excited हैं। जब से हमने at least सुना था कि हम 2.0 शूट करेंगे, तब से लेके अभी तक, now that it's releasing, the excitement level has not gone down. So very very excited, and I'm sure that you guys will love it. चलिए, थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर कबूल है 2.0 भी बहुत बड़ा हिट होने वाला है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप कुछ रिक्रिएट करें टेलीविजन के लिए भी। आई एम जस्ट होपिंग आप दोनों की जोड़ी एक बार वापस टीवी पर भी आए बहुत जल्द आफ्टर 2.0 कबूल है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस करण। सुरभि, थैंक यू सो मच। Thank you, Paris. Bye bye. Thank you. Bye bye bye. Take care. Bye. Bye.